Hi everyone. Well, let's see this set. And before we go ahead, I would highly recommend you to solve this set first, then watch the solution. Otherwise, it was not going to benefit you. Also, whenever you solve the set, keep with you a stopwatch and see the time, how much time you took, and do comment in the chat box like कितना time लगा वो बता दिया करो. Let's see this set. Let me zoom it a little bit so that it will clearly visible to you. I hope you solved the set. Let's see the solution. So it is mentioned that 8 cabinet minister A, B, C, D. Okay, so let me write name here A, B, C, D, E, F, G, and H are members of at least one of the following three cabinet committee. And the committees are economic affairs, parliamentary affairs, and political affairs. Among them, two are the members of. Okay, so it seems to me like reading this part, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पेन डायग्राम होगा. लेट्स सी, पढ़ते देखते क्या पता कुछ और हो. Among them, two are members of economic affairs, but not a parliament. Yes, it is a Venn diagram kind of set. So let me make a circle, or you can say simply Venn, like a diagram. ठीक है, Venn diagram बना लेते हैं पहले. Let's see. So because there is three committee, I would like to make a three circles. Let's make the three big circle. Three big circle. क्या? Okay. Just give me a moment. Done. So we are done the circle part. So yeah, come to this head. So it is mentioned that one of the member is from economic committee. Okay, so let's name it. This is eco. This is parliamentary, and the last one is politics. Okay, so these are the three committees. So among them, two are the members of economic affairs, but not parliamentary or political. It means two members जो है वो इकोनॉमिक अफेयर से, बट ना तो पार्लियामेंट से ना पॉलिटिक्स से. इट मीन्स यहाँ पे दो आ जाएंगे. ओके, सो देन दिस पार्ट इज डन. अनदर टू मेंबर आर पार्लियामेंट्री अफेयर्स बट नॉट इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स. तो दो और है जो पार्लियामेंट्री से बट इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स से नहीं है. यस, सो दिस इज डन. वन मेंबर इज अ पार्लियामेंट इज अ मेंबर ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स बट नॉट पार्लियामेंट्री अफेयर्स और इकोनॉमिक्स. सो एक मेंबर जो पॉलिटिकल अफेयर्स है. वो टोटल 8 है. अभी तक कितने हुए? 2 2 4 5 हो गए. लेट्स सी 3 मोर. फर्दर टू आर द मेंबर्स ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड parliamentary affairs but not political. So two are the members of economics and parliamentary but not political. So दो यहाँ पे आ गए. One is member of economic affairs and political affairs but not parliamentary affairs. One is a member of economic affairs and political affairs. So यहाँ पे वन आ गया. ओके, सो 8 मेंबर्स आर डन. सो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा. कूल. लेट्स सी फर्दर व्हाट इज मेंशन. तो अब यहाँ तक हमने कर लिया, तो अब हमें इन्हें फिक्स करना होगा. आई थिंक ए बी सी डी कहाँ पे है. So it is given here. The following facts are known about these 8 cabinet ministers. Out of A and B, one belongs to Committee of Economic Affairs only, and other belongs to Committee of Parliamentary Affairs only. तो जो A और B है, तो इसमें से कोई एक यहाँ पे होगा. Let me change the pen color. इधर A और B कोई एक यहाँ पे होगा. अगर जो भी यहाँ है तो उसके अलावा एक दूसरा बंदा यहाँ होगा. ओके, then first point is done. He is the member of both economic affairs and political affairs. इकोनॉमिक अफेयर्स एंड पॉलिटिकल अफेयर्स इन दोनों में है. इट मीन दिस पार्ट. यहाँ पे ई आ गया. नीदर एफ नॉर एच इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर. नीदर एफ नॉर एच, नीदर एफ नॉर एच इज द पार्लियामेंट्री मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर. अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर नहीं है, इट मीन्स ये जो सर्कल है इसमें नहीं आएगा वो. इसके अलावा यहाँ यहाँ तो आ सकता है ना. राइट, तो यू कैन सी हियर बिकॉज यहाँ वन मेंबर तो यहाँ पे एक ही आ सकता है. तो ई आ चुका है ऑलरेडी. तो एफ और एच की जो जगह बचे हैं यहाँ ये बचा है पोजिशन.
F or H, and the second position should be here. Okay, let's write F or H. This is done. Out of C and D, exactly one belong to Economic Affairs Committee. Out of C and D. So C and D, one is belong to Economic Affair Committee. तो C और D में से एक यहाँ पे बिलोंग करेगा. ओके, C और D में से एक यहाँ बिलोंग करेगा. एंड देन इफ वन ऑफ ओनली वन बिलोंगिंग फ्रॉम हियर, यहाँ तो कोई हो नहीं सकता है क्योंकि दो ऑप्शन यहाँ से ए और बी में से हो सकते हैं या फिर एफ और एच में से. सिमिलर यहाँ एफ और एच में से कोई एक आएगा. तो जो ऑप्शन बचा है सी और मतलब सी और डी में से एक यहाँ आ गया तो दूसरा यहाँ पे आना चाहिए. डी और सी. वन लेफ्ट. आई थिंक यहाँ पे एक ही आ रहा है तो कौन सा बचा है? इस यू कैन सी जी बचा है. सेकंड इज जी. ओके, आई थिंक वी डन दिस सेट. लेट्स सी द क्वेश्चंस. क्वेश्चंस क्या है? ओके, so yeah, this is the questions. Let me list some part. Okay, so the first question is how many how many of the ministers cannot be a possible member of committee on economic affair? कितने मिनिस्टर जो है वो मेंबर नहीं हो सकते? कैन नॉट बी पॉसिबल मेंबर. वी हैव टू चेक कैन नॉट बी अ पॉसिबल मेंबर. तो लेट्स सी कितने वहाँ पॉसिबल नहीं है. यू कैन सी हियर ए भी पॉसिबल है. ठीक है, दो तो पॉसिबल है. एच एफ ये भी पॉसिबल है. एच और एफ भी पॉसिबल है. जी ऑल्सो पॉसिबल, राइट. सी और डी भी पॉसिबल है. ई भी पॉसिबल है. यू कैन सी सारे तो पॉसिबिलिटीज है. इकोनॉमिक अफेयर्स में तो सारे आ सकते हैं. तो द आंसर फॉर दिस इज 0. सेकंड, हु अमंग द फॉलोइंग डेफिनेटली मेंबर ऑफ बोथ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमिटी? इकोनॉमिक और पार्लियामेंट दोनों में डेफिनेटली मेंबर हो. यू कैन सी डी में से कोई एक हो सकता है बट वी डोंट नो. बट जी इज कंफर्म. जी तो होगा ही होगा. आंसर फॉर दिस ऑप्शन बी, दैट इज जी. इफ A, C, F are members of different committees. Okay, okay, now there is a case. Okay, let's see, there is a case. And the case is, okay, इसका आंसर था 0. इसका आंसर था ऑप्शन जी. A, C, F are the members of different committee. अगर A यहाँ का होगा, C यहाँ, because different committee कहा है तो मैं C को यहाँ consider नहीं करूँगा. I would say simply, if A is here, C, C तो इकोनॉमिक में नहीं हो सकता तो C यहीं पे हो सकता है. What left? F. F यहाँ पे नहीं हो सकता तो F कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा. Then what they are asking, which of the following pairs belong to same committee? तो कौन सा पेयर है जो सेम कमिटी से बिलोंग करेगा? तो एफ तो अकेले ही है. व्हाट लेफ्ट? बी एंड सी. यू कैन सी यहाँ बी है, यहाँ पे सी है. क्योंकि ए यहाँ से बिलोंग कर गया, यहाँ से बी बिलोंग करेगा. ओके, यहाँ से एफ ऑलरेडी नीचे कर चुका था. ए और एच, इधर ए और एच और बी और सी शुड बी आंसर. यू कैन सी ए और एच तो आंसर नहीं है बट बी सी इज द ऑप्शन इन ऑप्शन. ऑप्शन डी इज द आंसर. होप यू गॉट दिस पॉइंट. बी सी शुड बी, बी एंड सी शुड बी आंसर. फोर्थ, if D and F cannot work together in committee, then which of the following statement can be false? D और F कमिटी में नहीं साथ में काम करेगा तो कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स होगा? कैन बी फॉल्स. लेट्स सी द फर्स्ट ऑप्शन. D and G can be members of both economics and parliamentary affairs committee. D and G, D यहाँ पे है, G यहाँ पे है, तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है. इट कैन बी ट्रू बट कैन बी फॉल्स हम नहीं कह सकते. ओके, इकोनॉमिक्स एंड पार्लियामेंट्री बोथ कहा है तो इट कैन बी फॉल्स. इट कैन बी ट्रू ऑल्सो. ओके, देर इज अ हाई चांस ऑफ बीइंग ट्रू. तो मैं ऐसा अवॉइड करूंगा, इसमें मैं कुछ नहीं करूंगा, माफ नहीं करूंगा. ठीक है. एंड बिकॉज द बोथ पूछा है, बोथ, तो यार अगर डी यहाँ पे भी है तो एक में तो दोनों साथ में हो ही जाएंगे. तो यस, दिस दिस कैन, मतलब ये आंसर नहीं होगा. कैन बी मेंबर ऑफ बोथ वाला. लेट्स सी द सेकंड. डी एच कैन बी मेंबर ऑफ इकोनॉमिक अफेयर कमिटी. डी एच कैन बी मेंबर ऑफ, यस, डी अगर यहाँ पे है, एच भी यहाँ पे हो तो यस इट इज पॉसिबल. इट कैन बी ट्रू. इट कैन बी ट्रू तो फॉल्स तो ये हो नहीं सकता है. कैन बी फॉल्स पूछा है तो अगर एच यहाँ पे है, डी यहाँ पे हो,
ओके, तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी. कैन बी मेंबर, यस इट कैन बी मेंबर, तो फॉल्स तो नहीं है. इट कैन बी, ओके, फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है तो यस दिस इज, ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है. तो दिस इज नॉट माई आंसर, दिस इज नॉट माई आंसर. बी सी एच कैन नॉट बी मेंबर ऑफ द सेम कमिटी. ये कह रहा है बी और सी एच एक साथ नहीं रह सकते. इज इट? इफ बी, लेट्स से बी अगर यहाँ पे, एच भी यहाँ पे, सी भी यहाँ पे, इट इज पॉसिबल वो साथ में रह सकते हैं, बट ये कह रहा है साथ में नहीं रह सकते. तो यार दिस इज रॉन्ग, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. तो ऑप्शन 3 इज माई आंसर. लेट्स रीड फोर्थ ऑल्सो, मे बी कुछ गलत हो सकता है. ए एफ कैन वर्क टुगेदर इन द सेम कमिटी. ए एफ कैन, या दे कैन वर्क, दे कैन वर्क. तो ये फॉल्स नहीं हो सकता है. बट यार थर्ड पॉइंट फॉल्स हो सकता है, बिकॉज इट इज डायरेक्टली सेइंग कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ सेम कमिटी. तो ऑप्शन फॉर दिस इज, सॉरी, आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन 3. तो और अप्रोच कर रहे हो, यू फाइंडिंग अ डिफिकल्ट, तो अलग बात है. तो इन चैट बॉक्स डू लेट मी नो आपने कौन सा अप्रोच से किया है, बिकॉज आई फाउंड दिस अप्रोच शुड बी इजी. एंड सेट वाज, यू कैन से इजी प्लस, और यू कैन से सिंपली से इजी, यू कैन से सिंपली इजी.